السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ پیپر ہے 27 فروری 2026 کا، جو گزشتہ کل ہوا تھا اردو ساہتیہ کا 10ویں کلاس کا۔ چلو اسے سولو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور یہ پرچہ جو حل شدہ ہے، سولو کیا گیا ہے، یہ ہمارے مدرسے کی ایک طالبہ ہے عفرین بنت محمد حسین فیفانہ، اس نے یہ سولو کیا ہے ماشاءاللہ، اور میری نگرانی میں کیا ہے۔ تو چلو اسے دیکھتے ہیں جلدی سے۔ پہلا سوال آیا تھا، مندرجہ ذیل سوالات کے چند ممکنہ جوابات میں سے چن کر کاپی میں لکھیں۔ تو پہلا سوال ہے، کنہیا لال کپور کہاں پیدا ہوئے؟ آپشن ہے بی، لاہور۔ دوسرا ہے سبق زبانوں کا گھر ہندوستان کے مصنف کون ہیں؟ تو جواب ہے ڈی، سید احتشام حسین۔ تیسرا ہے سبق خدا کے نام خط کس زبان کی لوک کہانی پر مشتمل ہے؟ تو آپشن ہے اے، اسپینی زبان۔ چوتھا سوال ہے، صوفی کاظم الدین زاہد نے کس کی تخت نشینی کا اعلان کیا؟ تو رضیہ کی تخت نشینی کا اعلان کیا تھا، آپشن سی۔ لیکن یاد رہے، بعض بچے رکن الدین بھی کر کے آئے ہیں، تو رکن الدین ان کا غلط ہو جائے گا۔ پانچواں سوال ہے، بھارت کے دستور کا معمار کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے آپشن اے، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ چھٹا سوال ہے، نابینا کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے آپشن ڈی، جسے دکھائی نہ دے۔ کرنل نے سوار کو کتنے کارتوس دیے؟ جواب 10 کارتوس دیے۔ آٹھواں سوال، درج ذیل سے رتن سنگھ کی کہانی کون سی ہے؟ تو جواب ہے آپشن سی، کاٹھ کا گھوڑا۔ نواں سوال ہے، ہماری دنیا پہلے کیا تھی؟ جواب ہے آگ کا گولا۔ 10واں ہے، نسل آدم کا خون ہے آخر مصرے میں نسل آدم کا کیا معنی ہے؟ نسل آدم کا معنی ہے آدم علیہ السلام کی نسل۔ 11واں، بشر نواز کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ہے بشارت نواز خاں۔ 12واں سوال، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاہ بنایا؟ مصرے میں ایک کارخانے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے آپشن ڈی، دنیا۔ 13واں سوال ہے، عود ہندی اور اردو معلیٰ کس کے خطوط ہیں؟ جواب مرزا غالب کے خطوط ہیں۔ 14واں ہے، نظم پہاڑ اور گلیری کے شاعر کون ہیں؟ جواب ڈاکٹر علامہ اقبال۔ 15واں، خدائے سخن کے لقب سے کس کو جانا جاتا ہے، یا خدائے سخن کا لقب کس کو دیا گیا؟ تو میر تقی میر کو دیا گیا، میر تقی میر کو خدائے سخن کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ 16واں، نظم نیکی اور بدی کے خالق کون ہیں؟ جواب نذیر اکبر آبادی۔ 17واں ہے، حق کی جمع کیا ہے؟ جواب حقوق۔ 18واں ہے، اچھے کا متضاد کیا ہے؟ تو اچھا کا متضاد ہے برا۔ دوسرا سوال ہے، مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ تو سائنس نے ہمارے لیے بہت سی سہولتیں فراہم کی ہیں۔ دوسرا، سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے تعلیم بیحد ضروری ہے۔ تیسرا ہے، ساری دنیا کی خالصتاً دھیمی پڑ گئی تو رفتار۔ چوتھا، کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ جواب موت۔ 5واں ہے، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ 6واں ہے، خون اپنا ہو یا پرایا، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ تیسرا ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات ایک جملے میں لکھیے۔ تو سنسکرت کس زبان کی شاخ ہے؟ تو آریائی زبان کی شاخ ہے۔ دوسرا، بھیم راؤ امبیڈکر کا اصل نام کیا ہے؟ تو بھیم راؤ سکپال۔ تیسرا، آپ کے نصاب میں حبیب تنویر کا کون سا ڈرامہ شامل ہے؟ جواب کارتوس۔ چوتھا ہے، رضیہ سلطان نے کتنے سال حکومت کی؟ تو 3.5 سال حکومت کی۔ 5واں ہے، سبق بے تکلفی کے مصنف کون ہیں؟ کنہیا لال کپور ہیں۔ 6واں، ای میل کیا ہے؟ تو ای میل انٹرنیٹ خدمات کا ایک اہم حصہ ہے۔
7वां है शायर ने चश्मा किसको कहा है, तो शायर ने चश्मा सूरज को कहा है। 8वां है इकबाल की किसी एक नज़म का नाम लिखिए, तो इकबाल की नज़में हैं खिज़र रहा, शुआए उम्मीद, मस्जिद कुर्तबा और अपने निसाब में शामिल पहाड़ और गिलहरी भी है। साहिर लुधियानवी का असल नाम अब्दुल हई। 10वां है हस्ती अपनी हवाब की सी है, मिस्र में ज़िंदगी को किसके जैसा कहा गया है, तो पानी के बुलबुले की तरह कहा गया है, पानी के बुलबुले कहा गया है। 11वां नज़दीक का मुतज़ाद क्या है, दूर। 12वां तस्वीर की जमा क्या है, तो तस्वीर की जमा तस्वीर है। नेक्स्ट अपना जो सवाल है वो हिस्सा बा से है, ठीक है, सेक्शन बी से है। तो इसमें एक इक्तिबास दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, उसी से अपने को सवाल छांटने हैं। चलो देखते हैं। बेगम हज़रत महल की विलादत कब हुई, तो 1820 में हुई, ऑप्शन दे रखा है 1820। उनके बचपन का नाम क्या था, तो मोहम्मदी खातून था उनके बचपन का नाम। ये रहा 5वें का जवाब। 6ठा है बेगम हज़रत महल किसकी शरीक हयात थी, तो ताजदार अवध वाजिद अली शाह की थी, ठीक है, ताजदार अवध वाजिद अली शाह की बेगम थी, ये शरीक हयात थी। रियासत अवध की राजधानी क्या थी, तो फैज़ाबाद, रियासत अवध की राजधानी फैज़ाबाद थी, ऑप्शन दे रखा है। अब सवाल जो है वो 2-2 नंबर के शुरू होते हैं। मंदरजा झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए, तो फ़ेल किसे कहते हैं, फ़ेल वो कलिमा है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए या जाहिर हो। 9वां सवाल मुहावरा एक ही थैली के चट्टे बट्टे होने का माना लिखिए, तो सब एक जैसे होना। एक ही थैली लफ्ज़ थैली है, यहाँ थाली भी आता है, मुहावरा एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना और एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना भी मुहावरा है, तो माना है सब एक जैसे होना। यह हम सिफात होना एक ही बात है। 10वां है मुज़क्कर मुन्नस बनाने हैं, लड़की मुन्नस है उसका मुज़क्कर हो जाएगा लड़का, भाई मुज़क्कर है उसका मुन्नस हो जाएगा बहन। 11वां है सिफ्त किसे कहते हैं, तो सिफ्त किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई को बयान करना, ठीक है, इसे कहते हैं सिफ्त। अब वो चाहे इस्म हो या ज़मीर हो, खा कोई भी चीज़ हो, अच्छाई बुराई बयान करेंगे, उसकी हालत कैफियत बयान करेंगे, उसे सिफ्त कहते हैं। 12वां है मंदरजा झेल अल्फाज पर साबिक़ इलाही लगाइए, तो गैरत, बेगैरत, शर्म, बेशर्म। या दे रखा है साबिक़ या इलाही के लगाए, इन दोनों में से एक लगाने, अगर किसी ने दोनों भी लगाए तो भी सही है। मंदरजा झेल रमूज़ व काफ की अलामत लिखिए, तो वावेन की अलामत होती है, देख सकते हैं आप। सख्ता की अलामत ये होती है। अब 14वां सवाल दे रखा है मंदरजा झेल इक्तिबास का मतलब लिखिए और सियाक व सबा का हवाला लिखिए, तो मतलब तो इसको पढ़ के वही लिखेगा जो इसका मतलब है, मतलब के अंदर ज़्यादा नई चीज़ नहीं होती। असल है सियाक व सबाक, तो ये जो अपना इक्तिबास है ये नई रोशनी से लिया गया है। अथवा के अंदर दिया गया है ये सियाक व सबाक बेतकल्लुफ़ी सबक से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ़ कन्हैयालाल कपूर हैं। और मतलब के अंदर यही चीज़ लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत रद्द बदल भी कर सकते हैं। सबक खुदा के नाम खत का खुलासा, तो बिल्कुल आसान है, लेन शो वाला है। और कारतूस हबीब तनवीर का जो ड्रामा है या उसका खुलासा लिखना है, तो ये बिल्कुल आसान से सवाल थे। 16वां सवाल है मंदरजा झेल नज़म के बंद का मतलब लिखिए और नज़म और शायर का हवाला भी लिखिए। तो ये नज़म जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरती है, ये नज़म नेकी और बदी है और इसके मुसन्निफ़ नज़ीर अकबर आबादी हैं, ठीक है। बाकी इसकी तशरीह वो यही हो जाएगी आसान अल्फाज के साथ, इसकी कोई ज़्यादा अलग से कोई तशरीह नहीं है। मंदरजा झेल गज़ल के अशआर का मतलब लिखिए और शायर का हवाला, तो शायर का हवाला ये गज़ल मीर तकी मीर की है और दूसरा जो शेर है ये गज़ल मिर्ज़ा गालिब की है, ठीक है। और मतलब तो इनका बिल्कुल आसान ही है। 17वां सवाल जो दे रखा है नज़म हमद का खुलासा तहरीर करना है या फिर नज़म ए शरीफ इंसानों का खुलासा, दोनों बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 18वां सवाल मिर्ज़ा गालिब की सवाने अहवाल तहरीर कीजिए, तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश 1797 में आगरा में हुई, वफ़ात 1869 के अंदर दिल्ली में हुई। इब्तिदाई तखल्लुस असद था आपका और आपका असल नाम मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब था। अब्बा का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, चचा का नाम मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग और आपके खतूत ओहदे हिंदी उर्दू मुवल्ला वगैरह।
आपके मशहूर खतूत का मजमूआ है। तो ये चीज़ें इसमें लिखनी थी, जिसने लिखी है उसके नंबर पूरे पूरे आएंगे। या फिर अल्लामा इकबाल की सवाने हयात लिखिए, उसके अंदर अल्लामा इकबाल की पैदाइश 1877 सियालकोट में, वफ़ात 1938 लाहौर में हुई, और आपकी नज़में खिज़र राह, शुआए उम्मीद, मस्जिद कुर्तबा, तुलूए इस्लाम वगैरह। इसके अलावा कोई 2-4 बातें और किसी ने लिखी है तो उसके नंबर पूरे पूरे मिलेंगे इंशाल्लाह। 19वें सवाल के अंदर ऊपर वाला सवाल छोड़ दीजिए। अथवा के अंदर जो दे रखा है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब को 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखें। तो दरख्वास्त बिल्कुल ईजी है, जो अपने बचपन से लिखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, वो लिखनी थी, और उम्मीद है बच्चों ने किया भी होगा। 20वां जो सवाल है वो मजमून के ऊपर है। 3 मजमून दे रखे हैं, एक तो ईद उल फित्र, दूसरा दरख्तों की अहमियत, तीसरा औरत की तालीम। तो सबसे इजी जो है वो ईद उल फित्र ही है, और उम्मीद है बच्चों ने ये किया होगा। तो जिन बच्चों ने ये किया है इंशाल्लाह उनके नंबर पूरे पूरे आएंगे। तो ये था आपका पेपर, जो बिल्कुल आसान था, लेकिन आसान उन्हीं लोगों के लिए था जिन्होंने मेहनत की है। मेहनत करते हैं उन्हीं के लिए आसान होते हैं, जो मेहनत नहीं करते उनके लिए आसान मुश्किल सब एक बराबर होते हैं। ठीक है, अब रिज़ल्ट का इंतज़ार करें इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।